یہی کارواں ہے۔ ہماری مانگیں پوری کرو، 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 ہماری مانگیں پوری کرو۔ ناظرین السلام علیکم، امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین آپ کو بتائے دیتے ہیں کہ روزگار کی تلاش میں ہر شخص صبح گھر سے نکلتا ہے اور یہی کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے حق کی مزدوری کر کے اسے اتنے پیسے مل جائیں کہ وہ 2 وقت کی روٹی جٹا پائے۔ لیکن ہمارے کشمیر کے اندر ابھی بھی یہ رسم چلی ہے کہ کوئی نہ سر اٹھا کے جیے، اور اس حوالے سے ہمیں یہ بات اس لیے کہنے کی آج زحمت اٹھانی پڑی کیونکہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہمارے جموں کشمیر کے اندر روزگار کے حوالے سے آئے روز نئے سے نئے مسئلے سر ابھار کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور لوگ پریشانی کی حالت میں اپنی مسائل کے حل کے لیے در در کی ٹھوکریں کھاتے رہتے ہیں۔ یہاں پر احتسال یہ نہیں ہے کہ کوئی بے روزگار ہے اسے نوکری نہیں مل رہی ہے، یہاں احتسال یہ بھی ہے کہ جو نوکریاں کر رہے ہیں انہیں تنخواہیں نہیں ملتی، اور جو لوگ نوکریوں پہ لگ چکے ہیں ان کے ساتھ بڑے بڑے وعدے ہوئے لیکن ان کی نوکریاں نہ تو مستقل ہو سکی اور نہ ہی انہیں کام کے بدلے کبھی بھی اناج یا پیسہ ملا۔ آپ دیکھ رہے ہیں KTV اردو شاہد بخاری کے ساتھ۔ ناظرین آپ کو بتاتے ہیں کہ آج بھی کئی ایک جگہ پہ وادی کے اندر احتجاج دیکھنے کو ملے، اور یہ احتجاج کوئی اور نہیں یہاں کے کئی محکموں کے کیجول لیبرز کی طرف سے تھے، اور وہ یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ فوری طور پر ان کی تنخواہوں کو بھی واگزار کیا جائے اور سالوں سے پڑی ہوئی ان کی سیلریز کے حوالے سے جو سرکار نے وعدے کیے تھے وہ فوری طور پہ پورے کیے جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی نوکریوں کو مستقل کیا جائے۔ جی ناظرین، یہاں پر احتجاج تو نہیں ہونے چاہیے تھے کیونکہ کووڈ-19 چل رہا ہے، اور کووڈ-19 کے لاک ڈاؤن کے بیچ میں بھی اگر کوئی احتجاج کرنے نکلا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ روزی روٹی کا بہت بڑا مسئلہ آن پڑا ہے۔ یہاں گزشتہ دنوں ایک فوٹو وائرل ہوا جس میں PHE محکمے کے ایک ملازم جو کیجول تھا اس کی بچی کے فوٹوگراف جو اس کے ہاتھ پہ تھا اس پہ لکھا ہوا تھا کہ میں اپنے سکول کی فیس ادا نہیں کر سکتی کیونکہ میں ایک کیجول لیبر کی بیٹی ہوں۔ اس تصویر نے جہاں سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ چرچا بھی کروائی اور کئی لوگوں نے ہمارے ساتھ یہ بھی کہا کہ آپ اس فیملی کا نام بتائیے تاکہ ہم اس کی مدد کر سکیں، لیکن ہمارا جواب یہی تھا کہ آپ کتنے لوگوں کی مدد کریں گے، کیونکہ ہمارے پاس ایک لمبی تعداد ہے، یعنی کہ 66,000 سے بھی زیادہ، 1.25 لاکھ کے لگ بھگ کیجول لیبرز مختلف محکموں کے اندر گزشتہ 25 برس سے کام کر رہے ہیں اور قسم پرسی کی حالت میں ہیں۔ حکومت کی طرف سے کئی SROs بھی بنائے گئے، حکومت کی طرف سے کئی ایک معاملات بھی ان کے ساتھ طے ہوئے، کئی جگہ پر احتجاج کو روکنے کے لیے سرکار نے بیچ میں سازش بھی ڈالے، اور اس طرح سے اس وقت کی سرکار جو PDP اور BJP کے درمیان بنی اس میں یہ فیصلہ لیا گیا کہ SRO 520 کے تحت ان کیجول ملازمین کو فوری طور پر مستقل کیا جائے گا اور مرحلہ وار طریقے پر سینیارٹی کے حساب سے انہیں فوری طور پہ محکموں کے اندر اچھی خاصی جگہوں پہ اپنی جگہ پہ لگا دیا جائے گا تاکہ ان کا تذبذب ختم ہو جائے، اور اس کے ساتھ ہی ماہانہ مشاعرے کے حوالے سے بھی اس وقت کی سرکار نے یہ یقین دہانی کروائی تھی کہ مرکزی سرکار کے ساتھ بات کر کے انہیں فوری طور پر اس وقت جب SRO 520 بنا تھا بتایا گیا تھا کہ کچھ ماہ کے اندر اندر انہیں 11,000 سے پلس کی سیلری جو ہے وہ ہر کسی ملازم کو دی جائے گی، اور سینیارٹی کے حساب سے ہر کوئی ملازم اپنا مکمل حق پائے گا اور کسی کا بچہ بھوکا نہیں رہے گا، کسی کے بچے کو اسکول فیس کے لیے مجبور نہیں ہونا پڑے گا، کوئی محکمہ سفر نہیں کرے گا۔ لیکن جموں میں بعد میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ PHE کے ملازمین نے جب احتجاج کیا تو وہاں پر کئی دنوں کے لیے پانی کی سپلائی جو تھی وہ بھی روک دی گئی، اور اس کے چلتے ملازمین احتجاج کرتے رہے کہ ان کے معاملات کو فوری طور پر دیکھا جائے، جس کے بعد گورنر انتظامیہ نے وہاں ان کے ساتھ بات کر کے کچھ دیر کے لیے معاملے کو پھر ٹھنڈا کر دیا۔ لیکن اب باہر آتے ہی ایک مرتبہ پھر ملازمین کے اپنے معاملے ہیں جن کو لے کر کے وہ سڑکوں پر آنے کے لیے کسی نہ کسی طریقے سے مجبور ہو رہے ہیں۔ ناظرین کرام آپ کو بتاتے ہیں کہ آج بھی ٹنگمرگ کے اندر ایگریکلچر سے وابستہ کیجول
कैजुअल लेबर्स और दीगर मुलाजमीन ने एहतजाज किया। बता रहे थे कि कई महीनों से उनकी तनख्वाहें भी वागुजार नहीं हो रही हैं और SRO 520 तो दूर की बात, सरकार उन्हें मुकम्मल मुलाजमत देने के हवाले से कोई भी बात नहीं करती। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर उनकी कसम पुरसी को देखते हुए और इतने साल से उनके काम को देखते हुए, जबकि उनको बाज़ाब्ता तौर पर सरकार ने रजिस्टर भी कर लिया है, उन्हें मुकम्मल तरीके पर महकमे के अंदर परमानेंट किया जाए। इस हवाले से कि मुलाजमीन आए रोज एहतिजाज क्यों करते हैं, हमने कुछ एहतिजाजी मुलाजमीन से बात जब की तो कैजुअल लेबर्स ने अपने मुतालबात के हवाले से बात करते हुए कुछ यूं कहा। जी, हम सब डिवीजन टंगमर्ग एग्रीकल्चर कैजुअल लेबर से जी, हमारे मसाइल ये हैं कि हमें पिछले 10-15 सालों से यहाँ पे काम कर रहे हैं कलील उजरतों पे, कम से कम मतलब हमें बहुत सारी कलील मिल रहा है, जिसकी वजह से हम बहुत सारा सफ़र तय कर रहे हैं। और आज हमारी जो मांगे हैं गवर्नर इंतजामिया से, हमारी जो अटेंडेंस डेली वेजेस होती है ये हमें 10 to 15 डेज अलो करते हैं, जबकि हम 30 आउट ऑफ 30 डेज वर्क देते हैं। उसके बावजूद भी हमारे साथ नाइंसाफी होती है। इसके लिए हमारे साथ 15 सालों से यहाँ पे काम कर रहे हैं, हमें रेगुलर किया जाए ताकि हम भी अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकें। हो रही है, हम कैजुअल लेबरर्स हैं, हम कंटिन्यू काम करते हैं डिपार्टमेंट में, तो हमसे कंटिन्यू काम लिया जाता है, लेकिन हमारे जो वेज है वो नहीं दिए जाते हैं। और कभी कभी 2 महीने 3 महीने के बाद हमें 2000 या 1500 रुपये दिए जाते हैं। और वो फंड्स भी जब आते हैं तो उन पर सियासत होती है, तो हम परेशान होते हैं। जब भी फंड्स वागुजार होते हैं तो फिर उसके बाद भी हमें सफ़र करना पड़ता है कि हमारे वेज कब वागुजार हों। तो हम बहुत ही सफ़र कर रहे हैं पिछले 15 साल से। हम गवर्नर इंतज़ामिया से गुजारिश करते हैं कि बराए मेहरबानी करके हमारे साथ इंसाफ किया जाए, क्योंकि हमारे घरों में भी बच्चे हैं, हम भी आपकी तरह इंसान हैं। जो 60-60, 70-70 हज़ार रुपये सैलरी ले रहे हैं, वो भी आजकल के दौर में इस दुनिया में परेशान है। गवर्नर इंतज़ामिया से कि हमें रेगुलराइज किया जाए और हमारे वेजेस जो है वो कंटिन्यू दिए जाएं। अगर हम 30 दिन काम करते हैं तो हमें 10 दिन और 12 दिन या 8 दिन क्यों दिए जाते हैं? We want justice. We want justice. We want justice. हमारी मांगे पूरी करो, 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 हमारी मांगे पूरी करो। We want Justice. Justice. We want Justice. We want justice. हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी। जी हाँ नाजरीन, ये तो थे वो कैजुअल लेबर्स जो अपनी रुदात सुना रहे थे। नाजरीन, आपको बताए देते हैं कि महकमा जंगलात समेत कई ऐसे महकमे हैं जिसके मुलाजमीन इस वक्त दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, और कई घर ऐसे हैं जहां पर शायद एक वक्त की रोटी भी उन्हें नसीब नहीं होती होगी, क्योंकि उनके खाते में कभी तनख्वाहें नाम से भी जमा नहीं होती, और अगर कभी कभार उन्हें कुछ 1 या 2 हज़ार मिल भी जाते हैं तो आप भला खुद बताइए कि जिसकी पूरी फैमिली हो वो 5 या 8 महीने में 2000 रुपए का क्या करेगा। इस हवाले से नाज़रीन हमने सोचा कि क्यों ना बात की संगीनी को देखते हुए बात की जाए इजैक के प्रेसिडेंट से। इस वक्त हमारे साथ फैयाज अहमद शबनम जुड़ चुके हैं। फैयाज, आप तक हमारी आवाज आ रही है? यस, आ रही है। बताइए क्या मामले हैं आपके मुलाजमीन के और क्यों आए रोज एहतजाज होते हैं? आज भी टंगमर्ग में एग्रीकल्चर के जो कैजुअल लेबर्स हैं या नीड बेस हैं, उन्होंने जम के एहतजाज किया। बुखारी साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने हमें ये मौका दिया कि सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए। जी, अर्ज हमारे ये है कि हमारा इस वक्त सिर्फ मिडवेज और कैजुअल लेबर्स का बहुत बड़ा मसला है जी, जो 25 साल से पड़ा हुआ है। आपको याद होगा कि इन्होंने हमारे मुलाजमीन के साथ फोर्थ पे कमीशन से बराबर कुर्बानियां दी है। ये हमारे साथ साथ रहे, जिसमें हमारे फोर्थ पे कमीशन हुआ, 5th पे कमीशन हुआ, 6th पे कमीशन हुआ और 7th पे कमीशन हुआ, तो जिस तरह सेंट्रल गवर्नमेंट के मुलाजिम को हुआ, इसमें बराबर भी बराबर सी कुर्बानियां हैं हमारे डेलीवेशन और कैजुअल लेबर्स के। तो साथ साथ ये हमारे मुलाजिम के साथ शाना बशाना काम कर रहे हैं, बराबर कोई कमी इनमें काम में नहीं है। बल्कि हमें ये इसमें कहने में कोई कबात ना होगी कि सबसे पहले यही काम शुरू करते हैं, यही ज्यादा मशहूर है कि हो सके कि हमारी इसी वजह से कि हम मेहनत और लगन से काम करें, हमारी जरूरत लेकिन ना हो। लेकिन सरकार ने इस सिलसिले में वक्तन फवक्तन
बहुत से ऑर्डर्स निकाले, जैसा कि पहले 7 साल के बाद इसको रेगुलराइज किया जाएगा, उसके बाद SRO 64 निकाला गया, उसके बाद SRO 520 निकाला गया, लेकिन सरकार भी चाहती है, ऑर्डर भी जाता है, हुक्मनामे की हुक्म नवाब दादर नवाब जैसे पॉलिसी बन गई। और मसला ये हुआ कि इस वक्त में कपरूसी की हालत में, बहुत मुश्किलात में और अवरेज भी हुए हैं। इधर सरकार ने और दूसरी पीछे कमर में छुरी मारकर इन्होंने रेकमेंड पॉलिसी बनाई। इस रेकमेंड पॉलिसी में ये हुआ कि इनको डेरिवेटिव को 5% मार्क्स रखे, उससे क्या फायदा मिलेगा? या और एक है, एक ही जगह बेटा भी फार्म भरेगा और बाप भी फार्म भरेगा, कहाँ का इंसाफ है? हम आपकी वसादत से सरकार से पुरजोर मुतालबा करते, पुरजोर हमारी अपील है उनसे। आप पहले जिस तरह आपने स्टेट में रेकमेंड पॉलिसी बनाना शुरू की, उसी तरह आप पहले डेलीवेज और कैजुअल लेबर के हक में पॉलिसी बनाए। हमें और ये शौक नहीं है हम एहतजाज पर आए, डरना के ये इस पैंडेमिक हालात में हमें काफी मजबूरियां लाद हुई, लेकिन हमें इसके सिवा कोई चारा नहीं, हम मजबूर है। 6 तारीख को हम पूरा एहतजाज करने वाले हैं, जबकि श्रीनगर में दफ्तर, सरकारी दफ्तर खुलेंगे सेक्रेटरी। जी फैयाज, हमें बताइए कि अक्सर आप लोगों की वजह से बताया जाता है कि आप लोग सेक्रेटरीट का घेराव करते आए हैं, बाजारों में आए, आप लोगों ने एहतजाज किए, लेकिन SRO 520 के बाद आप लोगों ने जो मीटिंग की थी उस वक्त की हुकूमत के साथ, उसमें आप ही लोगों ने कहा था कि एक अच्छा फैसला है और हमें उम्मीद है कि मरहलावार तरीके पर सारे जो कैजुअल लेबर्स हैं उनके मामलात हल हो जाएंगे। उसके बाद क्या आपकी जोमा के साथ कोई मीटिंग नहीं हुई? जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आपके राब्ते कैसे हैं? क्या आप नई लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से कभी इस हवाले से मिले या नहीं मिले? देखो, इस सिलसिले में मेरी गुजारिश है, डेलीवेज फोरम जो है हमारे सजाद साहब के सरबराह वो चला रहे हैं, वो हमारी EJ के मजबूत कॉन्स्टिट्यूएंट है। उन्होंने उस वक्त जो किया, सरकार ने उनसे धोखा किया। जी, ये मान लीजिए कि सरकार ने उनको बताया, आप मान लीजिए इस वक्त SRO 520 हम आप उसके बाद आपको रेगुलराइज करेंगे। सरकार अभी काम ही कर रही थी उस पर, तो सरकारी चली गई, मामला उसी वक्त दफन हो, SRO 520 भी चला गया। यही हुआ ना, यही हम कहते हैं कि धोखा हो रहा है, वक्त पर डेलीवेटर्स के साथ जांच की गई, धोखा किया गया। इनको ये परेशानी की इस वक्त कपरूसी की हालत में। कुल मिलाकर के कितने इनके हित में और इस वक्त गवर्नमेंट का जो सिस्टम है वो अब तरीका है इनको चलाने का। मुझे पूरी उम्मीद है ये सरकार जो है ये इनके हक में अच्छी तरह से एक अच्छा इनको पूरी तरह ये क्रिएशन करके ये सारे जो 60,000 से ऊपर डेलीवेजर्स और कैजुअल लेबर्स हैं इनको रेगुलराइज करिए वन टाइम। फयाज साहब, मुझे बताइए कि अक्सर इन बच्चों का कहना है जो लोग मतलब मुकम्मल ड्यूटियां देते हैं, चाहे ठिठुरती ठंड हो, चाहे बरसती बारिश हो, चाहे आपका कोई भी महकमा हो, हम सिर्फ एग्रीकल्चर की बात नहीं करेंगे, आप देखिए कि बिजली महकमे के अंदर सैकड़ों बच्चे आज तक अपनी जिंदगी गंवा बैठे, तारों के साथ लग गए और इस तरह से हलाक हो गए, उनके बारे में कोई बात नहीं की गई। उसके साथ साथ आप देखिए आपके हरे भरे जंगलात तभी हरे भरे हैं, तभी ये कश्मीर का विरसा अभी कायम है जब यही कैजुअल लेबर सुबह निकलते हैं और शाम तक इन नर्सरियों को बनाते हैं। तो आखिर क्या मामला है, कहां पर आपकी कम्युनिकेशन गैप रहती है कि इजैक का मतलब ही होना चाहिए था जब ये जॉइंट फोरम है आपके एम्प्लॉइज का, तो आप लोगों के पास एक ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए थी, आप अभी तक LG इंतजामिया से मिले होने चाहिए थे। यही मैं अर्ज कर रहा हूँ ना आपसे जी, मैंने पहले ही अर्ज किया कि सारी कुर्बानियां आप देखें, जहाँ भी जो हलाकत होती है मुलाजिमों को, वो ज्यादातर कैजुअल लेबर्स और डेलीवेटर्स की होती है। यही तो कहना है हमारा, हम उतर आए हैं आज के दौर में सिर्फ हमारा यही मुद्दा है, हमारे डेलीवेटर्स और कैजुअल्स को रेगुलराइज किया जाए। और इस वक्त मुलाजिमिन की लीडरशिप में कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ यही एक मुद्दा हमारे पास है, इस पर हम आए हैं, हमने प्रोग्राम दिया है, इंशाल्लाह हमें जो है सरकार उससे पहले ही हमारे साथ बात करके ये मसला सुलझाएगी। अगर नहीं तो 6 तारीख के बाद EJ की पूरी क़यादत बैठेगी, वो आगे का अमल इस सिलसिले में फ्रेम करेगी। फैयाज साहब, ये भी सुनने में आया है कि अक्सर जितने भी महकमे हैं उनके अंदर काम कर रहे कैजुअल जो लेबर्स हैं या नीड बेस हैं या दीगर लोग हैं, उनको पिछले 8-8, 9-9 माह से साल से कोई तनख्वाह नहीं मिली है, काम उनसे लिए जाते हैं। उनका एक हिसाब से ये कह सकते हैं कि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव इस्तेसाल है। क्यों ये तनख्वाहें नहीं पहुंचती, क्या वजह है? अगर ये 66,000 कहीं पे दर्ज है, इनकी बाज़ाब्ता तौर पर रजिस्ट्रेशन हुई है, तो आखिर मामला क्या है, कहां पे जाकर के अटका हुआ ये? यही हम भी कह रहे हैं, ये लेबर्स का
कहाँ पर होता है, ये फंड कहाँ पर बंद हो जाते हैं, जी। ये फाइलें कहाँ पर दूर चल रही है। हम यही अर्ज कर रहे हैं आपसे, ये सरकार को देखना चाहिए। अगर हम मुलाजिमों से इंटेलीवेक्चुअल और कैजुअल से काम लेते हैं तो तनख्वाह क्यों नहीं देते हैं? जी। इतना नहीं है, ये फर्क है कि यहाँ एक कैटेगरी 1,000 रुपए तनख्वाह लेती है और जम्मू में 7,000 लेती है। जी। जम्मू में 1,000 लेती है, यहाँ 7,000। ये तफावत भी दूर होनी चाहिए। हमें यही इस समय कि सरकार वन टाइम ये मसला हल करे। जी। जिस तरह मुलाजिम के मसले उन्होंने हल किए, हमें उम्मीद है आज भी ये वन टाइम ये मसला हल हो जाए। जी। मैं पुरउम्मीद हूँ। मैं आपकी वसादत से भी सरकार से कहना चाहता हूँ कि हमें ये शौक नहीं है हम सड़कों पर आए, हम एहतजाज पर आए, धरने पर आए, लेकिन मजबूर है हमारी बात सुनने, कोई सुनता नहीं। और इनके आज तक 25 साल हो गए, 94 से ये काम करते आए हैं, कभी ये दर की ठोकरे खाए, कोई मसला हल नहीं हो रहा। चलिए शबनम फयाज, उम्मीद करते हैं कि आपकी आवाज़ जो है वो ऐवान बाला तक पहुंचेगी और इस सिलसिले में जैसे मरकजी सरकार की तरफ से ये यकीन दहानी करवाई गई थी कि अच्छे दिन आएंगे और साथ साथ ये भी बताया गया था कि जो सियासी इस्तेसाल लोगों का नौकरियों के नाम पे और दीगर मामलों में हुआ है अब वो नहीं होगा। अगर इस तरह के मामलों को वाकई तौर पे हल किया जाता है तो हम एक बड़ी जीत समझेंगे और उन लोगों पर एक बड़ा एहसान सरकार करेगी जिन लोगों ने आज तक इस रियासत को, इस कौम को बचाए रखा, महकमों के अंदर दिन रात काम करते हैं, मेहनत मशक्कत करते हैं और कई लोग ओवर एज भी होने को तैयार हैं। उनके मामलात हल होंगे, उनकी रोजी रोटी चलेगी और उनकी तनख्वाहें भी वक्त पे वागुजार होंगी। आपने केटीवी उर्दू में बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे ईजैक के सदर जो अपनी बात बता रहे थे। नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी ये बात ऐवान बाला तक पहुंचेगी और उम्मीद करते हैं कि एलजी इंतजामिया इस संजीदा मामले पर फौरी तौर पर गौर खोज करने के बाद यहां पर 66,000 उन अफराद की जरूर बात करेगी जो लोग इस वक्त तज़्ज़ुब और इज़्तिराब की कैफियत के बीच में जूझ रहे हैं और अपने मुस्तकबल से लेकर के, अपने बच्चों के मुस्तकबल को लेकर के भी इंतहाई परेशान हैं। हो सकता है कि हमारी ये बात ऐवान आला तक जब पहुंचे तो इस मामले में कोई बातचीत हो और लोगों को भी राहत मिले और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर उन नौजवानों को भी नई राह तलाश करने में मदद मिले जो अपनी नौकरियों के हवाले से इस वक्त इस इंतजार में हैं कि कोई बड़ा पैकेज जरूर आएगा जो उनकी राहत रसानी का सबब बनेगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। हमें दीजिए आज के शुमारे से इजाजत। खुदा हाफिज।